सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग बेटा। वेलकम बैक आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। तो आपने 4-5 डेज आई थिंक एंजॉय किया होगा बेटा। खैर बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन, और जिसमें बच्चों हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर, एंगुलर प्रोजेक्शन एज वेल एज प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन, इनके बारे में बेटा डिस्कस कर लिया है हमने। और उसके साथ साथ हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में भी बात की थी। और फिर उसी में मैंने कहा था कि एक केस हमारा और है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो हमारा केस है प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर, जिसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला केस जो है बच्चों, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास एक टावर है जिसकी हाइट h है, और वहाँ से हॉरिजॉन्टली हमने किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया, प्रोजेक्टेड करवाया है विद ए वेलोसिटी u, और ये कुछ इस तरह से एक पैराबोलिक पाथ को अचीव करके ग्राउंड को इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक करेगा। और इसके बिहाफ पे हमने हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू कैलकुलेट की थी, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया था, इक्वेशन फॉर पाथ कैलकुलेट की थी बेटा, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट जो है वो हमने फाइंड आउट की थी, और उसके साथ साथ यू एक्स जो है हम लेके चले थे उनमें u, और यू वाई लेके चले थे 0। तो ये केस हमने डिस्कस कर लिया है। अब यदि इसी के अंदर आपसे कहा जाए कि जो प्रोजेक्शन हो रहा है बेटा, वो हो रहा है एट एन एंगल थीटा अबाव हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारे पास टावर है, और यहाँ से ऊपर की तरफ हमने इस पार्टिकल को प्रोजेक्टेड करवाया है विद ए वेलोसिटी u, and this velocity makes an angle theta with the horizontal. So in this case, the component of velocity along x-axis ux, that is u cos theta, and along y-axis ui, that is u sin theta. So we can say in this case also ax equal to 0, as all of you very well known about why ax is 0, because there is no force acting in horizontal direction, only force acts due to gravity. So there is no force in horizontal direction, means there is no force in x-axis. If the net force in x-axis is 0, then according to Newton law of motion, m into ax equal to 0. M is not equal to 0, but ax equal to 0. So in all problems, we have taken ax equal to 0, and ux is u cos theta. Ay, that is g, depending upon upward or downward journey. And ui is minus u sin theta. Why I take minus u sin theta? Because this is u, this one is u cos theta, and this one is u sin theta. If this one is u sin theta, then in opposite direction minus u sin theta. That is why I take uy equal to minus u sin theta. So y equal to y naught plus uyt plus half ayt square, where y is h, or you can write minus h, because we assume this point is acts as origin. So this is the negative y-axis, you can write, or simple you can write h. So this h equal to y naught, origin coordinates 0 0, plus uyt, and ui is minus u sin theta into t, and plus half gt square. And students, using this equation we can find out the time of flight. Using this equation we can find out the time of flight. What we can say for finding the horizontal range? Then we have to use the equation x equal to x naught plus uxt plus half axt square. X, that is r, x naught 0 0, ux u cos theta into capital T, where capital T is the time of flight. So we can put the value of t from this equation into this equation, and we can obtain the value of horizontal range. What we can say for the velocity at any instant? As we know, vx equal to ux plus axt,
ux u cos theta, ax is 0. So vx is u cos theta. And vy we can also find out from this equation, as well as we can also find out from this equation, that is value of vy, using v square minus u square equal to 2as. So we can write vy square minus uy square equal to 2ay sy. So vy square equal to uy square plus 2ay sy. ये इधर आ जाएगा बच्चों, और इधर आने के बाद बेटा इसको लिख सकते हैं हम यू वाई का स्क्वायर, और यू वाई है क्या, माइनस यू साइन थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे, देन वी ऑब्टेन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh. So this is Vx and this is Vy. So using this equation we can obtain the value of velocity at any instant. So this is the projection from a tower, projection at an angle theta above horizontal. बच्चों इसी में ही यदि हम केस लें प्रोजेक्शन एट एन एंगल थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल, देन यदि हम इसको इस तरह से ना फेंकें, इस तरह से ना फेंकें, इस तरह से ड्रॉप करते हैं, फेंकते हैं इसको बेटा वेलोसिटी यू से, जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है थीटा, लेकिन बिलो द हॉरिजॉन्टल वर्ड यहाँ यूज किया गया है. हियर वी यूज द वर्ड बिलो हॉरिजॉन्टल, बट इन प्रीवियस केस अबव हॉरिजॉन्टल. So again, the component of this velocity along x as well as y direction is ux, u cos theta, and uy is u sin theta. So again, using the equation y equal to y naught plus uyt plus half ayt square, y that is h, uit u sin theta into t plus half g into capital T square. So using this equation we can obtain the value of time of flight. And for the horizontal range we can use x equal to x naught plus uxt plus half axt square, where ax is 0. So r equal to ux into t, and ux is u cos theta into t. So using this equation we can find out the value of horizontal range. And again, the velocity at any instant we use vx as well as vy. Vx equal to ux plus axt, ax is 0 and ux is u cos theta, and vy square minus uy square equal to 2ay sy. Using this equation we can find out the value of vy, and vx vy if we put in this equation then we can obtain the velocity at any instant. यदि हम इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दे बेटा तो उसके ज़रिए हम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये हमारे टावर के केसेस जो है वो कहलाते हैं. एक जरा इस पे बेस हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा. हमें डायग्राम दे रखा है जिसमें एक टावर गिवन है और जिसकी हाइट जो है बेटा वो 11 मीटर है, और यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट लाइक ए स्टोन को प्रोजेक्टेड करवाया है विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है 37 डिग्री. तो अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है. नंबर 1, स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड्स. 2 सेकेंड के बाद स्पीड क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल एज वेल एज स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. हमें इन पैरामीटर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले बच्चों यदि ये वेलोसिटी u है जो कि 10 है, तो बेटा इस u का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा इन दिस वे ux कितना आएगा, u cos थीटा, ये आ जाएगा. और इसका ऊपर जो कंपोनेंट आएगा इस तरफ ये आ जाएगा u sin थीटा 37, एंड दिस इज द ui. अब बच्चों हमें 37 की वैल्यू देखनी नहीं आती, तो इसके लिए आप ये ट्राइंगल कॉन्सेप्ट याद रखें छोटा सा. ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है. दिस इज 37, दिस इज 53, दिस इज 90 डिग्री, 3, 4, 5 ये साइड्स होते हैं इसकी. और यहाँ से मैं अब आपसे कहूँ कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos 37, तो cos 37 क्या होगा, तो आप बताएंगे b/h 4/5, sin 37 p/h 3/5,
कोस 53, कोस 53 3/5, साइन 53 4/5। तो ये आपको याद रखना है। और लॉज ऑफ मोशन में हमें 37 53 पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे हमें, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है इसके बारे में। तो बच्चों स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड्स हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है क्या, वेलोसिटी, जिसको लिख सकते हैं वी एक्स आई प्लस वी वाई जे वैक्टर फॉर्म में, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस 2 वी एक्स वी वाई कोस 90 और उस सारे का अंडर रूट यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ए एक्स 0, यू एक्स इज यू कोस 37, यू 10, cos 37 4/5, so we can say the value of Vx is 8 meter per second. Similarly Vy equal to Uy plus Ayt, where Uy is u sin theta and Ay is minus g into t. So the value of Vy is after solve minus 14 meter per second. तो यहाँ से बेटा u की वैल्यू 10 है, साइन 37 कितना हो जाएगा 3/5 इससे, और g की वैल्यू 10 हमने मान ली, और t 2 सेकंड के बाद आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज माइनस 14 मीटर पर सेकेंड। अब इस माइनस 14 का मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब होगा 2 सेकंड के बाद वो कुछ इस तरफ होगा, ये इसका मतलब, ऐसा हम बोलेंगे। तो यहाँ से वी एक्स पता लग गया, हमें वी वाई पता लग गया बेटा। So V equal to Vxi plus Vyj, that is 8i minus 14j. And if we want to find out the magnitude, then we can write coefficient of I cap का square plus coefficient of j cap का square, और उस सारे का अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर और उस सारे का अंडर रूट, उससे हम V की वैल्यू को इन मैग्नीट्यूड फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट y इक्वल टू वाई नोट प्लस यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि हम चाहें तो इसको माइनस एच भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने ओरिजिन माना है, और इसके नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस, या फिर क्या करें इसको h और बैकवर्ड जर्नी के लिए माइनस यू साइन थीटा लिखें, जैसा भी आपको ईजी लगे उससे हम कर सकते हैं। सो -11 वाई नोट 0 यू आई यू साइन 37 जो कि हमने सोल्व किया, प्लस हाफ इंटू ए वाई माइनस जी 10 टी स्क्वेयर। तो बच्चों यहाँ से बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी हमारी 11/5 सेकेंड। इतना टाइम लेगी वो बॉडी, वो स्टोन इस ग्राउंड तक पहुँचने में। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल टू यू एक्स टी, यू एक्स 8, t 11/5, so we can say 88/5 meter. This is the horizontal range. Maximum height above the level of projection. अब ये हमारी हाइट है मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोजेक्शन से, लेकिन आपसे कहा जाए कि ग्राउंड से बताओ हाइट कितनी होगी बेटा, तो ये 11 है और ये ऊपर h है, इन दोनों एडअप कर देंगे हम, वो आ जाएगी ग्राउंड से हाइट। लेकिन लेवल ऑफ प्रोजेक्शन से हाइट केवल इतनी कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक। कैसे निकालेंगे इसको, तो आंसर है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। हमने यूज की इक्वेशन, और जैसे वो बच्चों यहाँ पहुँचेगा तो इस पॉइंट पे पहुँचते ही वी वाई क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसका मतलब यहाँ से हमने फॉर्मूला यूज़ किया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और v 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और यहाँ से s की वैल्यू जो आएगी यू वाई का स्क्वायर बाई 2g आ जाएगी हमारी। यू वाई हमने सोल्व किया हुआ है, दैट इज कितना 6 का स्क्वायर, क्योंकि यू वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, इस यू वाई की वैल्यू निकालेंगे हम यू साइन 37 से, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 2 इंटू जी, एंड द वैल्यू इज 1.8 मीटर। सो दिस h इज 1.8 मीटर। एंड अबाउ द ग्राउंड, ग्राउंड से यदि ऊपर की बात करें हम, सो वी कैन एड दिस 1.8 इंटू 11 मीटर, दैट इज 12.8। एंड फाइनली स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड,
यूजिंग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ स्पीड 8√5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये हमारे पास कहलाते हैं एक सर्टेन हाइट है जो हमने टावर कंसिडर किया है और वहाँ से किसी पार्टिकल को हमने प्रोजेक्टेड करवाया है। इसके साथ साथ छोटा सा हमारा केस है प्रोजेक्शन फ्रॉम ए मूविंग प्लेटफॉर्म। यदि कोई प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें क्या क्या चेंजेस जो हैं देखने को मिलेंगे, या ये कहें जो ऑब्जर्वर जो हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं उसको किस तरह का पाथ नज़र आएगा और उसको उस पार्टिकल की वेलोसिटी जो नज़र आएगी वो कैसी होगी। तो जरा वन बाय वन ध्यान से देखें बेटा। इस डायग्राम में बच्चों ये एक हमारे पास मूविंग प्लेटफॉर्म है, लाइक ए कार, लाइक ए ट्रॉली, लाइक ए ट्रक, आप कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, जो किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। और इसके अंदर या इसके ऊपर जो है कोई ऑब्जर्वर हमने माना a वो खड़ा है और जो इस पार्टिकल को u वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंक रहा है। आपने मूविंग बस या मूविंग ट्रेन में बच्चों ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब भी कभी ट्रेन चल रही है और आप उस ट्रेन में बैठे हैं और आपके हाथ में एक बॉल है और आपने उसको ऊपर उछाला तो तुरंत वो बॉल आपके हाथ में आके गिर जाती है। तो ये हम थर्ड जो हमारी यूनिट है लॉज ऑफ मोशन उसमें भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन वही सेम बॉल, उसी सेम बॉल को बेटा ट्रेन से बाहर कोई व्यक्ति बैठा है और वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको उसका पाथ स्ट्रेट लाइन नज़र नहीं आएगा बच्चों। पॉइंट टू बी नोटेड। मैं फिर से मैं कह रहा हूँ कि उस ट्रेन के अंदर जो पर्सन है जिसके हाथ में बॉल है उसने बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल ऊपर जाएगी, सीधी उसके हाथ में आ जाएगी, उसको ऊपर और नीचे जाती हुई नजर आएगी इस वाले को। लेकिन उसी बॉल को बाहर कोई व्यक्ति बैठा है ग्राउंड पर जो कि रेस्ट में है, वो ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको ये बॉल एक पैराबोलिक पाथ में नजर आएगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, वर्टिकल भी है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ इस तरफ होगी। तो उस बाहर वाले व्यक्ति को वो बॉल एक कर्व पाथ में नजर आएगी, एक पैराबोलिक पाथ में नजर आएगी। तो अब इसको जो वेलोसिटी नजर आएगी इसकी हॉरिजॉन्टल वो क्या होगी और इसको इस बॉल की जो वेलोसिटी नजर आएगी वर्टिकल वो क्या होगी और इसके लिए क्या होगी देखिए जरा। तो हमने लिखा केस फर्स्ट, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ए ट्रक मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, देन ऑब्जर्वर ए स्टैंडिंग ऑन और इन द ट्रक, ऑब्जर्वर ए जो बेटा वो इस ट्रक पे ही है, विल सी द बॉल मूविंग इन स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ऊपर गई और नीचे गई। स्ट्रेट वर्टिकल लाइन का मतलब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। बट द ऑब्जर्वर बी सिटिंग ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे बैठा है, विल सी द बॉल मूविंग इन ए पैराबोलिक पाथ and the horizontal speed of the ball is equal to speed of the truck। मतलब इसको इस बॉल की जो स्पीड नजर आएगी हॉरिजॉन्टल वो कौन सी होगी, जो ट्रक की स्पीड है। ये इस बात का मतलब है। लेकिन यदि ऑब्जर्वर ए इस बॉल को सीधा ऊपर ना फेंक के कुछ इस तरह से फेंकता है वेलोसिटी u से, एंड दिस वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा विद द x axis or we can say with the horizontal, then what is the velocity of ball with respect to observer A as well as with respect to observer B। so देखें जरा। so when a ball is thrown at some angle theta in the direction of motion of the truck, horizontal and vertical component of ball's velocity with respect to observer A is, अब बेटा इस u को यदि हम रिजोल्व करें इस तरफ तो ये आ जाएगा बच्चों u cos थीटा, और इस तरफ रिजोल्व करें बेटा तो ये आ जाएगा u sin थीटा। ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो इसको तो इस बॉल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नजर आएगी वो होगी u cos थीटा और वर्टिकल जो नजर आएगी दैट इज u sin थीटा। लेकिन इस b को जो इसकी हॉरिजॉन्टल नजर आएगी u cos थीटा है और प्लेटफॉर्म वो भी मूव कर रहा है, तो इन दोनों का सम मतलब u cos थीटा प्लस v, और इस ऑब्जर्वर b को इस बॉल की जो वर्टिकल वेलोसिटी नजर आएगी या उसके रेस्पेक्ट में जो होगी ये हम कह सकते हैं दैट इज u sin थीटा। तो चेंज किस में आया, u cos थीटा प्लस v, लेकिन वर्टिकल u sin थीटा। जी हमारा
केस सेकंड कहलाता है। केस थर्ड, इसमें अगेन प्लेटफॉर्म जो है वो ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, वेलोसिटी v से बेटा यूनिफॉर्म है। ऑब्जर्वर बी जो कि ग्राउंड पे है, ऑब्जर्वर ए जो कि इस मूविंग प्लेटफॉर्म पे है, और उसने अपोजिट डायरेक्शन में इस पार्टिकल को प्रोजेक्टेड करवाया है विद ए वेलोसिटी u, which is again makes an angle theta. So this is u cos theta and this is u sin theta. So in this case the direction is opposite as in the previous case. So the horizontal and vertical components of the ball's velocity with respect to a is u cos theta and u sin theta, but with respect to b is ux u cos theta minus b. बच्चों माइनस इस बार क्यों किया बेटा हमने, क्योंकि ये डायरेक्शन u cos थीटा की है और ये प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी है, तो इसको जो नजर आएगा वो होगा u cos थीटा माइनस b, लेकिन वर्टिकल क्या होगा, ऊपर u sin थीटा होगा। पाथ हमेशा पैराबोलिक ही होगा इसके रेस्पेक्ट में, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन। लेकिन फिलहाल इस केस में ऐसे फेंका है तो ये कुछ इस तरह से आएगा। केस फोर्थ, इस केस में जो प्लेटफॉर्म है बेटा वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑब्जर्वर बी बाहर ग्राउंड पे है, ऑब्जर्वर ए जो है बेटा हमारे पास वो इस प्लेटफॉर्म पे है। अब प्लेटफॉर्म ऊपर v वेलोसिटी जा रहा है और ये कुछ इस तरह से इस पार्टिकल को प्रोजेक्टेड करवा रहा है। सो द प्लेटफॉर्म इज मूविंग विद स्पीड v अपवर्ड, देन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द बॉल्स वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू a। तो इस a के रेस्पेक्ट में इस बॉल की जो हॉरिजॉन्टल और वेलोसिटी होगी वो होगी u cos थीटा एंड u sin थीटा। लेकिन इस b के रेस्पेक्ट में बात करें बेटा हम, तो इस तरफ u cos थीटा, अब ऊपर u sin थीटा है और ऊपर ही v है, इन दोनों को एडअप कर दें हम, दैट इज u sin थीटा प्लस v, ये आ जाएगा b के रेस्पेक्ट में। लेकिन इसी सेम क्वेश्चन में बच्चों यदि ये प्लेटफॉर्म नीचे की तरफ आता v स्पीड से तो उस केस में बेटा इस बॉल की जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट होंगे बॉल्स की वेलोसिटी के a के रेस्पेक्ट में वो u cos थीटा और u sin थीटा होंगे। लेकिन b के रेस्पेक्ट में क्या होंगे बच्चों, u cos थीटा एंड u sin थीटा माइनस v। इस बार हमने माइनस क्यों किया बेटा, क्योंकि u sin थीटा ऊपर है एंड दिस v इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों ये हमारे इस प्रोजेक्टाइल मोशन के केसेस कहलाते हैं, टावर के रेस्पेक्ट में एज वेल एज मूविंग प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में। थैंक यू।